تو یہ ماہ محرم کی تاریخ سے ہی شروعات کی گئی کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوگی. اور تو انسان جب یہ سوچے کہ اس کی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہو رہی ہے تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے کہ میں نے سال پورا گزار دیا تو اس میں نے کتنے نیکیاں کی, میں نے سال بھر کون کون سے ایسے گناہ کیے جو اس سال مجھے نہیں کرنا ہے, میں نے کون کون سی نیکیاں نہیں کی ہیں جو مجھے اس سال کرنا ہے. یہ ایک انسان کو پلان کرنا چاہیے, ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ روزوں کے اعتبار سے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے. FG ہمارے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تمام طرح کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جو اللہ پوری دنیا کی سلطنت کو نبھائے ہوئے ہے, پوری دنیا کی سلطنت اسی کے اشاروں پر چل رہی ہے. اس اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی, آمینہ کے لال, مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. ہر مہینے کے اعتبار سے اس نبی نے اس امت کو رہنمائی دی کہ تمہیں ذی الحجہ کے مہینے میں کیسے زندگی گزارنی ہے, تمہیں حج کے ایام میں کون کون سے کام کرنے ہیں, اور جب ذی الحجہ کے ایام تمہاری زندگی سے چلے جائیں, تمہاری زندگی میں ماہ محرم آ جائے اور محرم کی تاریخیں تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تمہیں ان محرم کے دنوں میں کیسے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ حجاج اکرام ذی الحجہ کے ایام میں اللہ کو راضی کر کے, اللہ کو خوش کر کے, اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے, توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے, اللہ کی توحید کو اجاگر کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے, محرم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں, تم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو, اگر اپنے آپ کو اسلام کے فالو کرنے والے کہتے ہو, تو تمہارے لیے اسلام ہر ایام میں, ہر دن میں, ہر وقت میں, تمہارے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں بھی اسلام تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں ماہ محرم میں کیسے زندگی گزارنی ہے, محرم کا مہینہ ہم کیسے گزاریں. کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں ماہ محرم شروع ہو چکا انہیں پتہ نہیں ہے, کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اتنا زیادہ پتہ ہے کہ وہ ابھی سے شرک اعمال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, کچھ تو ایسے ہیں جنہیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ لوگ ماہ محرم ہو, چاہے ذی الحجہ ہو, چاہے عاشورے کے روزے ہوں, چاہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے ہوں, وہ ان سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ لوگ اپنی زندگی صبح شام یوں ہی گزار دیتے ہیں.
लेकिन माह मुहर्रम यह ऐसा महीना जो मेरी और आपकी जिंदगी में आ चुका है। आज मुहर्रम की 3 तारीख है। इस माह मुहर्रम की अहमियत और उसकी फजीलत अपने आप में एक मकाम रखती है। माह मुहर्रम का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे महीनों के मुकाबिल में इस महीने को फजीलत अता की। जैसे कि मैंने आप हज़रात के सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 मैंने आपके सामने पढ़ी, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन, के ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से आसमान और जमीन को पैदा किया, उसी वक्त से 12 शहर के साल के अल्लाह ने 12 महीने मुतय्यन कर दिए। साल के 12 महीने मुझे और आपको दे दिए गए। या अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई, अल्लाह कहता है कि तब से हमने मुतय्यन कर दिया कि साल में 12 महीने होंगे, और उन 12 महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने ऐसे होंगे कि जो हुरुम होंगे, यानी हुर्मत वाले महीने हो। अल्लाह ने उन 4 महीनों को उसी वक्त से हराम करार दे दिया। फिर आगे फरमाया कि वो हुर्मत वाले 4 महीने, जिन महीनों की हुर्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदाइश दुनिया से ही बना दी। कहा फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुम्हें उन महीनों के अंदर अपने नफ्सों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करना है। वो कौन से 4 महीने? 4 महीने जिलकादा का महीना, जिलहिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना और इसी तरीके से रजब का महीना। ये 4 महीने ऐसे हैं कि इन महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत करार दे दी कि अगर कोई इन महीनों में क़िताल करता है, अगर कोई इन महीनों में जिदाल करता है, अगर इन महीनों में कोई लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और आपसी इख्तिलाफ व इंतशार में पड़ता है, अल्लाह ताला कहता है कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अपने आप पर वो जुल्म करने वाला बन जाता है। ये माह मुहर्रम एक ऐसा महीना है कि इस महीने में अक्सर व बेशतर दुनिया के गोशों के अंदर इस महीने में बिदअत व खुराफात की जाती है। इस महीने के अंदर ये महीना बड़ा मजलूम महीना नजर आता है। इस महीने में इबादत होनी चाहिए। इस महीने में अपने आप में जो इतना मकाम रखता है कि इस महीने को इस्लाम का पहला महीना करार दे दिया। इस्लाम की शुरुआत का महीना, जिसे हम और आप जानते हैं कि माह मुहर्रम से इस्लाम की शुरुआत होती। माह मुहर्रम से महीने की, साल की इब्तिदा होती है। ये साल के इब्तिदा का अय्याम है। साल के इब्तिदाई अय्याम में एक मोमिन को, एक मुसलमान को मुस्तैद बन जाना चाहिए और अपना मुहासबा करते हुए आगे की तैयारी करना चाहिए कि मैंने साल पूरा गुजार दिया, मैंने मुहर्रम से लेकर जिलहिज्जा तक जिंदगी गुजारी, इस महीने में मैंने क्या पाया और क्या खोया। एक अपना मुहासबा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब यह आयत करीमा पेश की, क्योंकि माह मुहर्रम अपने आप में एक ऐसा मकाम रखता है, इसमें कई तारीखी वाकयात जुड़े हुए हैं। इस महीने से कई तारीखी वाकयात। जिलहिज्जा के महीने में हजरत उमर बिन खत्ताब की वफात के बाद, जिलहिज्जा के महीने के बाद माह मुहर्रम में कई सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जानें चली गई, कई सहाबा की जानें गई, और खास तौर से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत, ये पूरी दुनिया के लिए एक अजीम सानिहा है, पूरी दुनिया के लिए एक अजीम घाटा है कि अल्लाह के नबी के नवासे जो जन्नत के फूल हैं, जन्नत की खुशबू हैं, रैहानता फिल जन्ना, ये दोनों के दोनों नवासे अल्लाह के नबी ने कहा था, ये दोनों के दोनों जन्नत के खुशबूदार फूल हैं। ये दोनों के दोनों जन्नती साहबी हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई। तो ये महीना अपने आप में एक मकाम रखता है। और इसी तरीके से वाक़े करबला,
वाक़े करबला जो पूरी दुनिया के अंदर वाक़े करबले को पेश किया जाता है। सोशल मीडिया के अंदर ये पूरा महीना यूट्यूब में कमाए जाने वाली कमी, चाहे फेसबुक में कमाई जाने वाली कमी, वो पूरी की पूरी इसी माह मुहर्रम में करबले के वाक़यात को पेश करके की जाती है। वाक़े करबले को सामने रखकर कई चीजें उम्मत के सामने लाई जाती हैं। ट्विटर के अंदर हो, इंस्टाग्राम के अंदर हो, ऐसे ऐसे पेज कि जिनकी वजह से गलत चीजों को उम्मत के सामने पेश कर दिया जाता है। और आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर कई एक लाबियां हैं। लाबी यानी एक एजेंसी समझिए, लाबी जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक अगर कोई लाबी है तो वो यहूदियों की लाबी है, नसरानियों की लाबी। उसके बाद उनके बाद जो दूसरी एजेंसियां जो काम करती हैं पूरी दुनिया में, वो शियों की एजेंसियां। और शियों में 12 उनके फिरके, उन फिरकों में इस्ना अशरिया जो गाली किस्म का शिया, गाली किस्म के शिया जिनके अंदर पाए जाते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं। और उसके बाद वो लोग उम्मत के अकायद को बिगाड़ने का काम किया जाता है। उम्मत के अकायद के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उम्मत के सामने, उम्मत के नौजवानों के सामने ज़ईफ रिवायात को पेश किया जाता है। उम्मत के सामने हजरत अली की तरफ मंसूब करके कई अक़वाल उम्मत के सामने पेश कर दिए जाते हैं। और वो उम्मत उन्हीं अक़वाल को याद कर लेती है या उन्हें पढ़ लेती है, या उसे इंग्लिश के लिटरेचर के अंदर कई मज़ामीन को दाखिल कर दिया जाता है। फिर वो ये समझते हैं कि यही असल दीन है, हालांकि वो दीन असल दीन नहीं होता है। जो माह मुहर्रम अपने आप में जितना बड़ा मकाम रखता है, इसके साथ ही अपने आप में कई बिदअत और खुराफात भी लोगों ने जन्म कर दिया। इस महीने में कई ऐसी खुराफात की चीजें, कई ऐसी बिदअत की चीजें दाखिल कर दी, जिसकी वजह से ये महीना आता है तो अल्लाह को जो ज़िलहिज्जा के महीने में हम याद किए हुए होते हैं, ज़िलहिज्जा के महीने में हम कुर्बानियां देकर अल्लाह को राजी किए हुए होते हैं, वही अल्लाह माह मुहर्रम में हमारी बिदअत व खुराफात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान जो अल्लाह की नाफरमानियां कर रही होते हैं, अल्लाह ताला की लानतें ऐसे लोगों पर बरसती हैं। अल्लाह की लानतें ऐसे लोगों पर बरसती हैं, फरिश्तों की लानतें ऐसे लोगों पर बरसती है, और पूरी लोगों की लानतें ऐसे लोगों पर बरसती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये आयत करीमा नाजिल की, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना करो। इसकी तफसीर करते हुए इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने 2 बातें लिखी कि क्या सिर्फ इन 4 महीनों में जुल्म नहीं करना चाहिए? क्या माह मुहर्रम में जुल्म करने से गुनाह होता है कि दूसरे महीनों में अपने आप पे जुल्म किया जा सकता है या दूसरों पे जुल्म किया जा सकता है? इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं तशरीह करते हुए कि पहला कौल ये है कि इंसान इस महीने में जंगो जिदाल ना करे, आपसी लड़ाइयां, आपसी इख्तिलाफ व इंतशार से अपने आप को बचा कर रखें। चाहे वो हुज्जाज इकराम आने वाले हुज्जाज जिनके रास्ते में लड़ाइयां हुआ करती थी, पहले जमाने में सवारियां ऊंट से, घोड़ों से, सवारियों से हज के लिए जाया करते, तो रास्ते में आते हुए क्या करते थे लोग? हाजियों को लूट लिया करते थे, हाजियों पर हमले कर दिए जाते, हाजियों के माल को लूट लिया जाता। अल्लाह ने कहा कि इस महीने में तुम दूसरों पर जुल्म ना करो, अपने आप पर भी जुल्म ना करो, और दूसरों के माल को ना हड़पो, दूसरों के माल को ना हड़पो। और इसी तरीके से दूसरा कौल एक ये बयान किया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी इन महीनों में करने से मना कर दिया गया। इन महीनों में अल्लाह और उसके रसूल की अगर नाफरमानी होती है तो अल्लाह ताला इसका गुनाह अता करता है, अल्लाह इसकी पकड़ करता है। एक और कौल इसके शरह में एक बात बयान की गई कि जिस तरीके से रमजान के महीने में, चाहे ज़िलहिज्जा के महीने में मुहर्रम के 10वें आशूरे के रोजे की जैसी फजीलत बयान की गई, वैसे ही अगर इन महीनों में कोई जुल्म भी करता है, अल्लाह ताला उसका गुनाह डबल कर देता है, उसका गुनाह बढ़ा दिया जाता है।
کیوں؟ کیونکہ ثواب جب ایک مقام پر بڑھ جاتا ہے تو اگر انسان بھی ان مہینوں میں، جس مہینے میں اللہ نے خاص طور سے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، تو ایسے وقت میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے، چاہے وہ آپس میں لڑنے والا ہو، چاہے اختلاف ہو، چاہے کسی کے مال کو ہڑپ کرنا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں انسان اپنے آپ کو ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ شراب پی کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اس کا جسم برباد ہو رہا ہے، چاہے گٹکے کھا کے اپنے آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے، چاہے سگریٹ پی کے اپنے آپ کی زندگی کو تباہی میں ڈال رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گٹکے کھانے میں، شراب پینے میں، ظلم کرنے میں اور بیئرز پینے میں، ایسی چیزوں میں امت محمدیہ کے نوجوان داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ افسوس کریں گے، صرف غیروں کی بات نہیں کر رہا، ایسے نوجوان بھی اس میں شامل ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، جو اہل حدیث کے نوجوان بھی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ جنہیں اسلام کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دیندار بچے نظر آتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ان چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ کیونکہ اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اگر کوئی شراب پی کے اپنے پہ ظلم کرتا ہے وہ ظلم بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کوئی حرام کھا کے، کوئی گندی چیز کھا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ظلم ہے۔ اور کوئی شخص نشہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے کئی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ پر ایک ظلم ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دوسرا قول نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں خاص طور سے اس مہینے میں کئی لوگ پنجوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا جو ہے کئی لوگ اس کے چیزیں ان کے ساتھ دینے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اسلام کے اندر جائز نہیں، اسلام کے اندر جائز نہیں۔ کئی افراد ایسے ہیں جنہیں سب کچھ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یا ان میں شامل ہونے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ خاص طور سے ایسے تو ہر مہینے میں ظلم سے بچنا چاہیے، ایسے تو ہر مہینے میں شرک سے بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزمان قد استدارك كهيئته يوم خلق السماوات والارض، زمانہ برابر چل رہا ہے اور گھوم پھر کر اپنی صحیح حالت پر آ جائے۔ کہیتی کہ اس کے زمانے کی حالت جیسے شروعات میں تھی ویسے ہی گھوم کر آ جائے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین پیدا کیے گئے، السنۃ 12 شہرا، کے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ پھر اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے اللہ نے بنائے، اس میں 3 متوالیات، 3 مہینے پہ در پہ ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ ماہ محرم کا مہینہ، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ رجب کا مہینہ جو شعبان اور جمادی کے بیچ میں آتا ہے، اس مہینے بھی اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچو۔ کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ میں محرم کی اہمیت کے پہلو سے کئی ایک چیزیں بیان کی گئی۔ یہ پہلی چیز کہ اس مہینے میں انسان کو لڑائی سے بچنا چاہیے، اس مہینے میں اپنے آپ کو امن و سکون میں رکھنا چاہیے، اس مہینے میں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، شرک سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، خرافات سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، اور انسان نئی جو بدعتوں میں شامل ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ 4 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز لڑائی جھگڑا اختلاف انتشار، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ اسلامی مہینوں میں دوسری پہلو یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ماہ محرم سے کی گئی۔
इस्लामी कैलेंडर हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में जब कैलेंडर बनाया गया तो ये माह मुहर्रम की तारीख से ही शुरुआत की गई कि इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से होगी। और तो इंसान जब ये सोचे कि उसकी साल की इब्तिदा माह मुहर्रम से हो रही है तो उसे अपना मुहासबा करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि मैंने साल पूरा गुजार दिया तो उसमें मैंने कितने नेकियां की, मैंने साल भर कौन कौन से ऐसे गुनाह किए जो इस साल मुझे नहीं करना है, मैंने कौन कौन सी नेकियां नहीं की हैं जो मुझे इस साल करना है। ये एक इंसान को प्लान करना चाहिए, एक इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए। और इसी तरीके से कि इसकी अहमियत इसलिए भी उजागर होती है कि रोजों के एतबार से अफ़ज़लुस्सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे माह मुहर्रम के रोजे, माह मुहर्रम के रोजे। अल्लाह ने इसमें एक रोजा ऐसा रखा है, अगर कोई शख्स 10 मुहर्रम का रोजा रख लेता है युकफ्फिरुस सनतल माज़िया वल बाक़िया, उसके एक साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। फिर आगे फरमाया कि इसी तरीके से ये महीना शहरुल्लाह है। अल्लाह ने क्या कहा, इस महीने को अल्लाह का महीना कहा। अल्लाह का महीने का क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि मसाजिद सब के सब अल्लाह के घर हैं, जहां भी दुनिया में मस्जिदें बनी हैं वो तमाम की तमाम मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। लेकिन अल्लाह ने खास तौर से खाने काबा को बैतुल्लाह कहा कि वो मेरा घर है। क्यों कहा अल्लाह ने इसलिए कहा कि दूसरे मसाजिद में तमाम मसाजिद की अफजलियत को बतलाने के लिए खाने काबा को बैतुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब किया। तो अल्लाह के नबी कहते हैं इसी तरीके से तमाम महीने 11 महीने अल्लाह के हैं, लेकिन मुहर्रम को अल्लाह ने कहा शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना। इस वजह से भी इस महीने की अहमियत बढ़ जाती है। तो इस महीने में कुछ अहम काम करना चाहिए। पहली चीज कि मुहासबा नफ्स, नए साल की प्लानिंग। जब रमजान होता है तो इंसान उसके बाद नए अज़ाइम के साथ शुरुआत करता है। और इसी तरीके से जो कुफार होते हैं उन लोगों के अपने खास दिन होते हैं, फला बिजनेस के बाद, फला व्यापार के बाद, दशहरे के बाद, फला के बाद वो लोग अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी का शेड्यूल तैयार करते हैं। तो एक मोमिन को भी अपनी जिंदगी की शुरुआत इस्लामी साल से करनी चाहिए। माह मुहर्रम से उसे अपनी प्लानिंग करना चाहिए कि भाई मुझे साल में कौन कौन से अच्छे काम करने हैं, मुझे फला फला नेकी के काम करने, साल में मुझे इतनी मर्तबा कुरान पढ़ना है, साल में मुझे फला नेकी के ऐसे ऐसे काम करना है, अल्लाह की राह में इतना खर्च करना है, फला करना। इंसान को प्लानिंग करना चाहिए। और मोमिन जो होता है वो इस्लामी अय्याम के एतबार से अपने आप को तैयार करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरीके से तुम देखते हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, सूरतुल हश्र आयत नंबर 18। अल्लाह ने फरमाया कि हर वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसे अल्लाह से डरना चाहिए। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उसे ये सोचना चाहिए कि कल के लिए मैंने क्या छोड़ा है, कल के लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूं कि मैं ये पूरा महीना 1440 पर 5 हिजरी शुरुआत हो चुकी है, मुहर्रम की 3 तारीख है, इस साल में मैं फला फला काम करूंगा, पिछले साल मैंने फला गुनाह किए, इस साल में वो गुनाह की तरफ नहीं लपकूंगा, पिछले साल में सूद में शामिल था, पिछले साल में बीमा में शामिल था, पिछले साल में संगमों में शामिल था या शामिल थी, अब मैं इस साल नहीं रहूंगी, मैं इस्लामी एतबार से जिंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी, या मैंने पिछले साल फला मुहर्रम के महीने में फला बिदअत किया था लेकिन इस साल में काम नहीं करूंगा, या इस साल में काम नहीं करूंगी, मैं फला महीने में फला साल मैंने ये गुनाह किए थे, इस साल में काम नहीं करूंगी, मैं ये चीजें नहीं करूंगी। आज हमारी माएं बहनों को भी अहद करना चाहिए कि साल की इब्तिदा नेकियों से होनी चाहिए। और इसी तरीके से जितनी दुनिया के अंदर कंपनीज होती हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े इदारे होते हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े टेस्ट होते हैं या जो है जितने सेंटर्स होते हैं, वो लोग अपना एक डाटा रखते हैं,
अपना एक मुहासबा करते हैं कि भाई साल में हमने इतना इनकम किया, इतना अर्न किया, इतना फायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ, इसके अंदर क्या क्या कमियां हुई, क्या पेशियां हुई, वो तमाम चीज़ों को सामने रखकर इंसान अपने दुनिया की ज़िंदगी को तरक्की देता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम आखिरत को तैयारी करो। आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला दिलों के अंदर तुम्हारे जो कुछ भी है उसको जानता है। ऐसा नहीं कि हम गुनाह भी करते जाएं और नेकियां भी करते जाएं और गुनाह के कामों में भी आगे बढ़ते जाएं और फिर दीन के कामों में भी आगे बढ़ते जाएं। ये मोमिन की अलामत नहीं है, ये मोमिनों की अलामत नहीं है, बल्कि ये मुनाफिकों की अलामत है। मुनाफिकीन जब अल्लाह के नबी के पास आते तो वो लोग कहते कि हम पक्के सच्चे मोमिन हैं। जब अपने इलाके में चले जाते, अपने लोगों में चले जाते, कहते कि हम आपके साथ हैं। वही हाल मेरा और आपका हो जाएगा कि हम गुनाह भी कर रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, फला भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, बिदात भी कर रहे हैं, खुराफात भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दीन पे भी अमल कर रहे हैं। ऐसे नहीं, बल्कि एक मोमिन जो होता है वो नए इब्तिदाई साल से, माह मुहर्रम से यह अहद करे कि मैं फला गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखूंगा। और इसी तरीके से एक और चीज कि इस महीने में खास तौर से ये महीना हुर्मत का महीना, इस तौर पर भी इसमें कई लोग जो मातम मनाने के कायल हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर शियों ने एक ऐसा खूबिया पेश किया, एक ऐसा कल्चर पूरी दुनिया को दिया कि ये महीना आते ही लोगों के जहनों में मातम का मौसम आ जाता है। लोगों के जहनों में इस महीने को नहुसत समझ लिया जाता है। इस महीने में कई लोग अपने दुकान की शुरुआत तक नहीं करते, कई लोग नया व्यापार शुरू नहीं करते, कई लोग शादियां माह मुहर्रम में नहीं करते। आज भी इतनी तरक्की याफ्ता दौर में भी ये नहुसत के अकीदे और नौहा के अकीदे, मातम के अकीदे, मुहर्रम के महीने में लोगों ने बदशगुनी को अपना लिया, ये बिल्कुल जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद, वो शख्स हम में से है ही नहीं, वो शख्स हम में से है ही नहीं जो अपने गाल पर पीटे। गाल को पीटने वाला यानी रोने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, कोई मर गया उसे सालों साल नौहा कर रहे हैं। आज आप ताज्जुब करेंगे, कई अहले हदीस घरानों में भी ये चीज है कि अगर उनके घर का जिम्मेदार मर गया या कोई औरत मर गई, उस घर की बड़ी मर गई, तो उसके गम में कई साल तक उस दिन गोश्त नहीं बनाया जाएगा, उस दिन फला अच्छा काम नहीं किया जाएगा, उस दिन कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी, उस दिन जो है कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने जाएंगे। ये सब कहां से है? इस्लाम में जायज नहीं है। सिर्फ 3 दिन अगर कोई मातम मनाना चाहता है, अगर कोई सोग मनाना चाहता है, उसके लिए 3 दिन है। अगर शोहर मरता है तो 4 महीने 10 दिन उस औरत के लिए है। उससे ज्यादा मातम मनाना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। और उसके लिए ये समझना कि नहीं ये दिन फला दिन है, जिस दिन फला इंतकाल हो गए या फला मर गए, फला चले गए, ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये अकीदे की चीजें हैं, इसको मामूली ना समझें। ये अकीदे की चीजें हैं, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि नहीं हमारी मोहब्बत उनसे ज्यादा थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे लोग हमारे में से नहीं हैं। फिर आगे कहते हैं लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब, अपने गिरेबान को चाक करना, अपने गिरेबानों को फाड़ लेना, कपड़ों को फाड़ना, या जो है तलवार के बाजी के जरिए अपने जिस्म से खून निकालना, या अपने बच्चों के सरों को चीरना, या अपने बच्चों के गलों पर छुरियां चलाना माह मुहर्रम में, और शान हुसैन के नाम पर ये जो चीजें की जाती हैं ये बिल्कुल हराम चीजें हैं, ये हराम करदा यह चीजें हैं। वदआ बिदअवल जाहिलिया, और जमाने जाहिलियत की दावत की पुकार को पुकारना, ये जमाने जाहिलियत की चीजें हैं। इन चीजों से मुझे और आपको बचना चाहिए। और इसी तरीके से एक और अमल यह भी होना चाहिए कि इस महीने में कसरत से रोजा रखें, क्योंकि रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और उसने सवाल किया। क्या सवाल किया? अफज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे वो मुहर्रम के रोजे हैं।
मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए। और इसी तरीके से एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्युस्सलाति अफज़लु बअदल मक्तूबा व अय्युस्सियामि अफज़लु बअद शहर रमज़ान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है और रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे कौन से हैं? तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुस सलाति बअद अस्सलातिल मक्तूबा अस्सलातु फी जौफिल लैल। अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की तहज्जुद की नमाज, रात की तहज्जुद की नमाज है। और फिर कहते हैं कि सबसे अफजल रोजे व अफजल सियाम बाद शहर रमजान सियाम शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम के रोजे रखना ये सबसे अफजल अय्याम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी शहरुन असूमुहु बाद रमजान, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई अय्याम बताएं, कुछ दिन बताएं जिसमें मैं रोजे रखूं कसरत के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कुंत साइमन शहरा बाद रमजान फसुम अल मुहर्रम फइन्नहु शहरुल्लाह, के तो ये अगर रमजान के बाद मुहर्रम का महीना तेरी जिंदगी में आ गया तो रमजान के बाद जो सबसे अफजल रोजे हैं वो मुहर्रम के रोजे हैं, वो मुहर्रम के रोजे रखा करो। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया है, लेकिन इसके माने की हदीस सही हदीसों के अंदर जो इससे पहले इब्न अब्बास की रिवायत मैंने पेश की उसके अंदर वो सही रिवायत है। और इसी तरीके से खास तौर से आशूरा का रोजा, आशूरा का रोजा किसे कहते हैं? 10 मुहर्रम का रोजा, ये खास तौर से इस रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत आई है। इब्न अब्बास कहते हैं जब अल्लाह के नबी मदीना आए तो अल्लाह के नबी ने देखा कि बाद साहबा इकराम ने देखा कि यहूदी जो हैं वो 9 तारीख को रोजा रख रहे हैं, यहूदी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के नबी से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है कि हम देखते हैं कि यहूदी इस दिन की बहुत अहमियत रखते हैं 10 आशूरा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा से ज्यादा करीब हैं, हम हकदार हैं कि मूसा के लिए हम क्या करें कि हम 10वीं मुहर्रम के रोजे को रखें, और अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? हम ज्यादा हक रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम हमसे ज्यादा करीब हैं, हम 10 का भी रोजा रखेंगे और 9 का भी रखेंगे। लेकिन इब्न अब्बास की एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अगले साल आने से पहले पहले इस दुनिया से चले गए। अब इसमें इख्तिलाफ पैदा हो कि क्या 9वीं मुहर्रम का रखना रोजा या 10वीं मुहर्रम का रोजा रखना, इस मसले में उलमा के दरमियान बहुत इख्तिलाफ। लेकिन आखिर में अब्दुर्रहमान अल बन्ना जो एक हदीस के शायर हैं उन्होंने एक बात लिखी कि सबसे अफजल इब्न अब्बास की जो रिवायत है उसकी सनद को उन्होंने सही करार दिया और कहा राज कौल यही है कि अगर इस्तिताअत है तो सूमू अत्तासे वल आशिर। इब्न अब्बास भी यही कहते हैं। इब्न अब्बास से पूछा गया तो इब्न अब्बास ने कहा सूमू अत्तासे वल आशिर, तुम 9 का भी रोजा रखो और 10 का भी रखो ताकि उनकी मुखालिफत भी हो जाए यहूदियों की, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालिफत भी हो जाए और तुम्हें सवाब भी मिल जाए। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी अगर एक रोजा हम रखते हैं तो इसका क्या सवाब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, एक साल के तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि बारह कहने वाले को कहने से ज्यादा, सुनने वालों को सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह सियाकारियों से बचने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह जितने बिदात और खुराफात हैं अल्लाह उन तमाम खुराफात से बचने की तौफीक अदा फरमा। इंशाअल्लाह बचेंगे पीछे वाले, क्योंकि हमारे करीब में कई बिदात होती हैं, उनमें कई लोग ये चेहरे जो मसाजिद में नजर आते हैं वो वहां भी नजर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह नहीं करेंगे बिदात। ये मुहर्रम के महीने में पंजे ताजिए ये जितनी चीजें ये सब कब की हैं? ये आजादी के बाद 1947 के बाद जब 50 की जब दहाई आई, 3 साल के बाद जब ला बनाया गया, ला बनाने के बाद हिंदुस्तान के अंदर ये बिदात आई, ये सब चीजें आई। और इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी, पहले कई 150 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फैली नहीं थी। वो जहां जिन इलाकों में बादशाहों ने किया वहीं तक रह गई। कभी जफर ने कोई मिलाद की बिदात पैदा कर दी, वहीं रही।
اور کچھ لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر وہ کچھ دھاگے باندھ کر ان لوگوں نے تعزیے کے نام دے دیے، پھر وہیں تک رہی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ایسی پھیلتی گئی۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں قریے قریے میں اگر 10 گھر ہیں کہیں جنگل میں رہتے ہیں وہاں بھی تعزیے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام، یہ افریقہ تک، انگلینڈ تک، نہ جانے کہاں کہاں تک یہ بدعت چلی جاتی۔ اسی لیے کہا برائیاں جلدی پھیلتی، نیکیاں کم پھیلتی۔ اچھے لوگ، نیک کام کرنے والے کم ملیں، اور گناہ کے لیے لوگ فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ تنگیوں میں ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں بیماریوں میں مبتلا ہیں کئی لوگ، کئی ایک بیماری شوگر بی پی ہر طرح کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ قرآن کے ذریعے سے انہیں صحت یابی عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما، اللہ بیماریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ اللہ جب تک وہ والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ انہیں ان کے صحت یابی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی نیک انعامی کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔